وزیراعظم شہباز شریف نے کراچی دھماکے کی مذمت کرتے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ صوبے میں امن و امان کو بہتر بنانے کے حوالے سے وفاق مکمل سپورٹ فراہم کرے گا۔ وزیراعظم نے دھماکے میں جاں بحق اور زخمی افراد کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ بولٹن مارکیٹ دھماکہ، وزیر اعلیٰ نے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن اور ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ جاوید اردو کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی عمران یعقوب بھی شریک۔ وزیر اعلیٰ نے واقعے پر بریفنگ لی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا یہ مسلسل تیسرا واقعہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گرد متحرک ہو رہے ہیں۔ پولیس اور انٹیلیجنس کے ادارے اپنا انٹیلیجنس کا کام تیز کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے امن و امان سے متعلق اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ بحران بڑھ رہے ہیں، حکومت کو درپیش چیلنجز سے کیسے نمٹا جائے، حکومت اور اس کے اتحادیوں نے مشاورت تیز کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کی۔ آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان بھی ملے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج ہوگا جس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا۔ ابتر معاشی حالات اور سیاسی بھونچال، انتخابی اصلاحات یا فوری انتخابات، مشاورت کے لیے حکومت اور اتحادیوں نے سر جوڑ لیے۔ وزیر اعظم سے مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کی الگ الگ ملاقات۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ جمہوریت اور آئین کی پاسداری ہی پاکستان کی ترقی اور استحکام کی ضامن ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں وزیر اعظم نے عوام کو اشیاء ضروریہ کی ارزاں نرخوں پر دستیابی کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے تمام اتحادی جماعتوں کا مل کر کام کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومتی سطح پر تمام فیصلے کرتے ہوئے قومی مفاد ہر حال میں مقدم رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم سے ملنے کے بعد آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے بیٹھک جمائی۔ انتخابی اصلاحات اور ضروری قانون سازی کے بعد الیکشن پر اتفاق ہوا۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان مسلم لیگ نون کے لندن کے فیصلوں پر گفتگو ہوئی۔ ایم کیو ایم نئی حکومت کو بھی خیر آباد کہنے کے لیے پر توڑنے لگی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے حکومت کو پیغام دیا معاہدوں پر عمل درآمد کریں نہیں تو اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو فوری الیکشن کی تجویز بھی دیتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مخالفت بھی کر دی۔ تحریک انصاف کی حکومت نے سب سے زیادہ معاہدوں پر عمل کیا۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی اور وفاقی وزیر امین الحق کا کہنا ہے کہ انتخابی اصلاحات ایک ہفتے میں ہو سکتی ہیں۔ عام انتخابات ہی موجودہ مسائل کا حل ہیں۔ فریش مینڈیٹ لیا جائے تو دیر بدنصیبی نصیب نہیں ہوتی۔ سارے مجھے ہرانے کے لیے اکٹھے ہو گئے، ان سب کا اکٹھا جنازہ نکلے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ثوابی جلسے میں حکومت اور اس کے اتحادیوں پر چڑھائی خطاب میں کہا ہم امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے، صرف الیکشن کی تاریخ چاہتے ہیں۔ جنہوں نے حکومت مسلط کی ہے انہیں پیغام دینا ہے کہ ہم آزاد قوم ہیں، نکلے الیکشن کمیشن لوٹوں کو بچانے کی کوشش نہ کرے ورنہ عوام سے بچ نہیں سکے گا۔ جانور بھی ضرورت کا کھا کر بس کر دیتا ہے اور ایک یہ ہیں جن کی بھوک ختم نہیں ہو رہی۔ جب ایسے لوگوں کو بڑے عہدوں پر بٹھا دیا جائے تو ملک کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہیں۔ سارے اکٹھے ہو گئے عمران خان کو ہرانے کے لیے، ان ساروں کا اکٹھا جنازہ نکلے گا۔ کوئی امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے، پیغام دینا جنہوں نے مسلط کیا یہ ایک آزاد قوم ہے۔ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانوروں سے نیچے چلے گئے ہیں، پیسے کے بت کی پوجا کرنے والے ہیں۔ ایک جانور بھی اتنا کھاتا ہے جتنا اس کی بھوک ہوتی ہے۔ پختونخوا میں صرف ایک لوٹا ہوا، ایک سب سے زیادہ لوٹے فیصل آباد سے نکلے تھے۔ ایک بھی لوٹا اگلا الیکشن فیصل آباد سے نہیں جیتے گا انشاءاللہ۔ الیکشن کمیشن نقطے ڈھونڈ رہا ہے کسی طرح ان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی عوام سے یہ نہیں بچیں گے انشاءاللہ۔ ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ دو، الیکشن کرو، پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں۔ زرداری اور شریف 10 سال جب انہوں نے حکومت کی، ڈیزل ان کے ساتھ فٹ ہوا تھا۔ کرائم منسٹر یہ ضمانت پہ بھی ہے، 24 ارب کے کیسز ہیں۔ جو اس کا بھائی وہ سزا یافتہ ہے، مفرور ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، جھوٹا ہے۔ جس ملک میں اس طرح کے لوگوں کو
बड़े बड़े ओहदों पे बिठा दिया जाए, उस मुल्क की अखलाकियात तबाह हो जाती है। स्वाबी मैं सबको इस्लामाबाद में मिलना चाहता हूँ। इमरान खान की एहतजाज की कॉल से सरमायाकार खौफ का शिकार हैं। चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक पोस्तान का कहना है कि डॉलर की कीमत ऊपर जाने की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम है। हुकूमत जाते ही इमरान खान ने जलसे करने शुरू किए। बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में मौजूद बिजनेसमैन ने सरमायाकारी रोक ली है। 1998 में जब ज़र मुबादला 400 मिलियन रह गए थे, मुल्क तो तब भी दिवालिया नहीं हुआ था। इस हुकूमत ने जब हलफ उठाया था, डॉलर 190 से कम होके 181 तक चला गया था इसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से। लेकिन बाद में क्या, इमरान खान साहब ने जब वो बड़े बड़े शहरों में जलसे किए और बड़े कामयाब जलसे किए, अब 20 मई को उन्होंने कॉल भी दी हुई कि हम इस्लामाबाद में धरना देंगे। और शेख रशीद साहब के जो बड़े मतलब बयान है, रेजी का खतरा है, सिविल वार का खतरा है, तो फॉरेन इन्वेस्टर में क्या पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी डर के अपना सरमाया निकालना शुरू कर दिया। और आपने देखा जो हमारे अकाउंट होल्डर के डॉलर के जो 7 अरब डॉलर के जो डॉलर पड़े थे वो कम होकर 6 अरब डॉलर पे आ गए। इमरान खान चाहते हैं सूबाई असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। जलसे और लॉन्ग मार्च का दबाव वफाकी सतह पर इलेक्शन कराने के लिए है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का दावा। अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के बजाय सियासी मुखालिफिन को हिट करना चाहिए। ये कहना दुरुस्त नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं, वो न्यूट्रल हैं। इमरान इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की बजाय सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत आज मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए, इनहराफ से बेहतर है इस्तीफा दें, इस सिस्टम बच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ और नून लीग के वकील मखदूम अली खान ने इल्तवा की दरख्वास्त पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान एक ही फरीक के वकला हैं। अल्तवा की दरखास्तों का मतलब है कि हुकूमत ताख़ीर करना चाहती है। इस्लामाबाद से जहांज़ेब अब्बासी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल करने का अंदिया दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, इनहराफ से बेहतर है इस्तीफा दें, इससे सिस्टम बच जाएगा। इस्तीफा देने वाले को अवाम वोट दें तो वो दोबारा आ जाएगा। ज़मीर के मुताबिक भी अगर कोई इनहराफ करे तो डिसीट होगा। सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ और नून लीग के वकील मखदूम अली खान की अल्तवा की दरखास्त पर भरमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल और मखदूम अली खान एक ही फरीक के वकला हैं। अल्तवा की दरखास्तों का मतलब है हुकूमत ताख़ीर करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लिमानी पार्टी की हिदायत की तकरीम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी की हिदायत को खत्म कर दे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, हर रुकन अपनी मर्जी करेगा तो जमहूरियत का फरोग कैसे होगा। किसी फर्द पर फोकस करने के बजाय सिस्टम पर फोकस क्यों न किया जाए। आर्टिकल 63A के तहत मामला इनफरादी नहीं बल्कि पार्टी का हक है। क्या 10-15 अरकान सारे सिस्टम को डिरेल कर सकते हैं। अदालत ने इमरान खान के वकील को जवाबुल जवाब दलाइल देने से रोकते हुए करार दिया, बाबर अवान जोश खिताबत में सुप्रीम कोर्ट को जलसा समझ लेते हैं। तहरीरी गुजारिशात पेश करें। जहांज़ेब अब्बासी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है, लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली के मुतल्लिक केस में पंजाब हुकूमत ने चीफ सिक्योरिटी अफसर मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन को जमानत पर होने के बावजूद गिरफ्तार किया। चौधरी शुजात हुसैन ने बयान में कहा, केस अदालत में चल रहा है, हुकूमत अदालत में आकर केस की पैरवी करे, गिरफ्तारियां करे, हमजा शहबाज से पुरानी रवायत को उजागर ना करें। ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के अफसरान और मुलाजमीन अपनी हिफाजती जमानतें करवाने पर मजबूर हैं। लाहौर सेशन कोर्ट में पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर पर हमला और हंगामा आराई और तोड़ फोड़ पर समाअत। PTI और काफ लीग के 12 अरकान की अबूरी दरखास्त जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने MPS की अबूरी जमानतों पर 25 मई तक तौसीह कर दी। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल ने की। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा न्यू नईम मलिक से। नईम मलिक, समाअत का अहवाल बताइएगा तफसीलन। नईम मलिक, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो समाअत का अहवाल बताइएगा तफसीलन।
क्योंकि सेशन कोर्ट में पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर पर हमला हंगामा रही तोड़फोड़ के मामले में जो कि पीटीआई और काफ लीग के 12 अरकान की अबूरी दुहास जमानत पर समाअत हुई है, जिस पर आज अदालत ने एमपीएस की अबूरी दुहास जमानतों पर 25 मई तक वो तोसी कर दी है। केस की समाअत जो थी एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल ने की। आज जो कि एमपीएस की जानब से चौधरी फरमान महनेस वो एडवोकेट वो आज अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजारों में अम्मार यासर, शहबाज अहमद, महेंद्र सिंह, वारिस अजीज, ख्याल अहमद, शुजात नवाज और मलक नदीम अब्बास बारा वो आज अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। जो कि एमपीए का मौक़िफ़ था कि हमें जो कि गैर कानूनी तौर पर वो गिरफ्तार किया जा रहा है कि मजीद ऑफेंस डालकर 506 बी और 354 बीपीसी के तहत दोबारा जो कि वो दफा लगाकर जो कि हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। हमें बेल के बावजूद जो कि हमारे घरों पर वो पुलिस भारी नफरी वो तैनात की है। बहुत शुक्रिया नईम मलिक। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान दौर में लंदन से निजी हाउसिंग सोसाइटी के 45 अरब रुपए वापस आने और इसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए जुर्माने में एडजस्ट करने के मामले की तहकीकात का ऐलान कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अलकादर यूनिवर्सिटी और बनीगाला में फरहत शहजादी को दी गई 200 केनाल ज़मीन पर भी तहकीकात की जाएंगी। कौमी असम्बली का इजलास, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और गौस बख्श महर ने अपोजिशन लीडर न होने का मामला उठाया। 1-2 रोज में अपोजिशन लीडर का मामला हल होगा, डिप्टी स्पीकर और ख्वाजा आसिफ की यकीन दहानी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन से निजी हाउसिंग सोसाइटी के 45 अरब रुपए वापस आने और उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए जुर्माने में एडजस्ट करने की तहकीकात का ऐलान। ख्वाजा आसिफ ने कहा 32 तलबा वाली अलकादिर यूनिवर्सिटी को 400 केनाल जबकि फरहत शहजादी को 200 केनाल जमीन दी गई। इस मामले की तहकीकात करेंगे। अद्वियात, चीनी आटा समेत इस तरह के बहुत से स्कैंडल्स हैं जिन पर इमरान खान से जवाब तलबी की जाएगी। 450 कनाल जमीन जो है अता की गई एक ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए जो आज भी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। वहाँ पे 32 स्टूडेंट जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड अदारा है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा जिन इलाकों में 50% बिल अदा किए जाते हैं वहाँ लोड शेडिंग ज्यादा है। आज मुल्क के ज्यादा हिस्सों में लोड शेडिंग 0 हो चुकी है। जो हाई लॉस फीडर्स हैं उनके ऊपर उनके लॉसेस के एतबार से लोड शेडिंग होती है। कौमी असम्बली इजलास में अरकान की अदम दिलचस्पी बरकरार है। कोरम के लिए 86 अरकान का ऐवान में मौजूद होना जरूरी है, जबकि ऐवान में सिर्फ 51 अरकान मौजूद थे। इजलास कोरम मुकम्मल न होने के बावजूद जारी रहा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के 2 मोबाइल फ़ोन चोरी। शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान के फ़ोन सियालकोट एयरपोर्ट से गायब कराए गए, लेकिन इन मोबाइल फ़ोन्स में वो वीडियो मौजूद नहीं है जिसमें इन्होंने अपनी जान के खतरे पर बयान रिकॉर्ड कराया। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि पीटीआई ने खुद ही फिर मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए होंगे। दूसरी जानब इस मामले पर पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी से किसी ने किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। इमरान खान के 2 मोबाइल फोन चोरी। शहबाज गिल ने बयान में दावा किया कि साबिक वजीर आजम के फोन सियालकोट में चुराए गए। इमरान खान जलसागाह पहुंचे तो एयरपोर्ट से उनके फोन गायब हुए। शहबाज गिल ने बड़े यकीन से ये भी कह दिया कि इमरान खान ने जो वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया है वो उन मोबाइल फोन से नहीं मिलेगा। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने शहबाज गिल का इल्जाम बेबुनियाद करार दिया। कहते हैं इमरान खान ने खुद ही मोबाइल चोरी करा लिए होंगे। इमरान खान साहब ने क्या पता खुद ही चोरी करवा लिए हो, कोई बैद नहीं है ना। जो शख्स अपने मोबाइल का ध्यान नहीं रख सकता उसने मुल्क का जो अशर किया आपके सामने, उसने अपना ध्यान क्या रखना है। अता तारड़ का कहना है शहबाज गिल का ये दावा सरासर झूठा है। उस्मान बुज़दार ने 10 अरब के असासे कैसे बनाए, इनके असासों की तहकीकात करेंगे। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने उस्मान बुज़दार और साथियों के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ चेयरमैन नैब से इस्तदा करता हूं कि वो नोटिस लें। इमरान खान उस्मान बुज़दार से माली फवाद लेते रहे। फरहा गोगी बनीगाला के जरिए पंजाब पर हुकूमत करती रही। उस्मान बुज़दार के दोस्त जावेद कैसरानी ने बहरीन में 1 अरब की सरमायाकारी की। वेलकम बैक। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एक हफ्ते में आटे का थैला 720 रुपए तक महंगा। मुल्तान, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला में भी 20 किलो थैले की कीमत 500 रुपए बढ़ गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गंदम और आटे के बहरान पर बरहमी का इजहार, कहते हैं अवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। वफाकी हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करे। वज़ीर-ए-आज़म ने बाहर से आने वाले गंदम की सूबों में शफाफ तकसीम के लिए फौरी कमेटी कायम करने की हुक्म दे दिया। हुकूमत आटे की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। एक हफ्ते में आटे का थैला 720 रुपए तक महंगा। इस्लामाबाद के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो आटे का थैला 1520 रुपए तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रावलपिंडी में आटे का थैला 706 रुपए महंगा हो गया। फैसलाबाद में 20 किलो आटे की कीमत 600 रुपए बढ़ गई। पेशावर के शहरियों के लिए आटा एक हफ्ते में 590 रुपए महंगा हुआ। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट और गुजरांवाला में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 500 रुपए बढ़ गई। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सूबों को गंदम की खरीदारी के लिए दिए गए अहदाफ पूरे न करने पर शदीद बरहमी का इजहार। वफाकी हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी। सूबे 1 जून तक गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे कर लेंगे। महंगाई के तूफान की वजह से मटन और बीफ पकाना हुआ। इनके पाए बनाना सभी गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से कोसों दूर हो गए। साथ ही चिकन की कीमतों को भी पर लग गए तो शहरियों ने इस सूरत हाल में उड़ती मुर्गी के पाँव पकड़ना ही शुरू कर दिए। लाहौर से रिजवाना शेख की रिपोर्ट। बीफ खाना तो शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। मुर्गी भी इस दौर में पीछे नहीं रही। खाने के शौकीन जिंदा दिलाने लाहौरियों ने इत्तेफाक किया है मुर्गी के पंजों पर। इन्हें साफ करने से बनाने तक का सफर कैसा है, आइए जानते हैं। मटन, बीफ और चिकन महंगा हुआ तो क्या हुआ? मुर्गी के पंजे तो कदरे सस्ते हैं ना। चिकन की कीमतों को पर लग गए तो शहरियों ने मुर्गी के पंजों को ही गनीमत जान लिया। को मना भी किया था, आप फिर पंजे उठा के ले आए हैं, ये मुझसे नहीं रहा। रोज रोज इतनी मेहनत करो इसके ऊपर, फिर बच्चे नहीं खाते। इसको पहले उबालो, तैयार करो, नाखून धो, इसके पानी में उबालो, मसाला बनाओ। इतनी मेहनत करने के बावजूद फिर बच्चे ना खाएं तो क्या फायदा। पहले पंजे चूल्हे पर कई घंटे लगाकर भूनना, साफ करना, पानी में उबालना और फिर हांडी बनाना। घरों में खवातीन बच्चों को बिजित होकर पंजे खिलाने पर मजबूर। कहती हैं महंगाई इतनी है, मटन, बीफ और चिकन नहीं तो यही खा लें। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बीफ और मटन तो हम खा ही नहीं सकते, ना उनके पाए खरीद सकते हैं। तो फिर अब यही बचे हैं जो हम हफ्ते में 2 से 3 दफा पका लेते हैं इसको। बच्चे भी मुंह बनाते हुए मुर्गी के पाए खा ही लेते हैं। कहते हैं रोज रोज खाना अच्छा नहीं लगता। पापा रेस्टोरेंट में ले आते हैं, मम्मा बना के खिला देती है, मुझे नहीं पसंद। दुकानदार कहते हैं पहले पंजों को कोई पूछता ही नहीं था, अब जल्द बिक जाते हैं। मुर्गी इतनी महंगी हुई है, फिलहाल तो हम पंजे सेल कर रहे हैं। जो भी आता है वो कहता है हमें पंजे दे दो, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो। 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए तक पंजे बिक रहे हैं। 40 और 50 रुपए फी किलो में पंजे खरीदना तो आसान काम है, लेकिन किचन की गर्मी में खड़े होकर पकाना बहुत मेहनत तलब है। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ रिजवाना शेख, न्यू न्यूज़, लाहौर। और सफदराबाद गर्मी बढ़ते ही गैस फराहमी मुतासिर हो गई है। सफदराबाद में कहीं गैस गायब है, कहीं प्रेशर कम है। सार्फिन अजियत में मुब्तला हैं, होटल्स और तंदूरों पर जाने पर भी मजबूर हैं। मजीद इसी हवाले से अपडेट्स जानेंगे मोहम्मद रफ़ीक से। मोहम्मद रफ़ीक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सफदराबाद और नवाही इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया जो है 12 से 14 घंटे से भी तजावज़ कर गया है, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं बगैर नाश्ता किए ही स्कूल जाने पर मजबूर हैं। तो इसी वजह से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे बात कर देता हूँ। हमारी ये गैर एलानिया 15-16 घंटे लोड शेडिंग जो हो रही है, हमारे घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे स्कूल जा रहे हैं। लिहाजा हमें वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से अपील है कि हमारी इस गैस जो बंद होती है इस पर तवज्जो दें। इन लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि तहसील सफदराबाद में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग को फिलफौर ख़त्म किया जाए। जी, हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की बंदिश के दौरानिए में इजाफे ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। बिजली की बंदिश ने कारोबारी तबके के अलावा घरों में मौजूद खवातीन को भी परेशान कर रखा है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। जी नासिर शेख, बताइएगा। जी, हैदराबाद में जूं जूं गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। बिजली ना होने की वजह से शहरी परेशान है, ख़ास तौर पर वो कारोबारी तबका जिसका काम जो है वो बिजली से होता है, लेकिन बिजली नहीं होती तो सारा दिन जो है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद एक सारिफ है। हैदराबाद शहर में बिजली की बेइंतहा लोड शेडिंग की जा रही है। घरों में बहुत ज़्यादा आवाम को तकलीफ परेशानी है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। 10 से 12 घंटे, 12 से 14 घंटे कोई इतला नहीं देते हैं, कोई बताते नहीं है।
आती है लाइट चली जाती है, बिजली तो ना होने के बराबर है हैदराबाद शहर में। जहाँ पर जो है उस बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ बिजली ना होने की वजह से घर में ख़वातीन को परेशानी का सामना है। ट्रांसफार्मर ख़राब पड़े हुए हैं, कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद ट्रांसफार्मर नहीं बनाए जाते, और अगर इनकी मरम्मत भी की जाती है तो इलाके के लोगों से पैसे लिए जाते हैं। जी। और गर्मी की शिद्दत और बिजली की लोड शेडिंग कराची के बासियों को घर से बाहर ले आई। ठंडे मशरूबात की दुकानों पर रश लग गया। मशरूबात में तरबूज का शरबत हो तो क्या ही बात होती है। रजब अली की ये रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्मी में ठंडक का एहसास, अवाम ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। कराची वाटर पंप का मशहूर तरबूज का शरबत पीने के लिए शहरियों का तांता बंधा रहता है। कहते हैं तरबूज का शरबत ठंडा और फरत बख्श भी है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, लाइट भी चली गई थी, तो बच्चे जिद करने लगे कि इस गर्मी में क्या किया जाए। तो हमने मुनासिब समझा कि वाटर पंप का जो मशहूर तरबूज का शरबत है वो पीने के लिए आए हैं, जिसको पिया भी जा सकता है और खाने में भी मज़ेदार है। गर्मी बहुत सख्त हो रही है तो हमने कहा चलो तरबूज का शरबत ही पीते हुए निकले इधर से। इतनी गर्मी हो रही है, जूस पिला दें तो बस जूस ही पीने आए हैं, बहुत अच्छा है। गर्मी में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल गर्मी से बचने का रिवायती तरीका भी है। कैमरामैन नौमान खान के साथ रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। दीना के नवाही गांव मलोट के बासी पटवारी के जुल्म सितम से तंग आ गए। शहरियों का कहना है कि पटवारी मोबाइल बंद रखता है और मिलता भी नहीं, लाखों रुपए लेकर भी इंतकाल नहीं चढ़ाता, चक्कर पर चक्कर लगवाता है। मजीद बताएंगे जरार हुसैन मीर। जी जरार, बताइएगा क्या मामला है ये? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील दीना के नवाई इलाका मलोट में। मौजा मलोट में एक पटवारी के लिए इलाका सरापा एहतजाज बना हुआ है। वहाँ बहुत सारे मसाइल हैं लोगों को। मेरे साथ एक साहिल मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी मैं एक रिटायर्ड सरकारी अफसर हूँ। मैंने 2017 में रकबा ख़रीदा और इसने फ़ीस की मद में मुझसे 6 लाख रुपया वसूल किया। आज 5-6 साल हो गए हैं, इसने ना मेरा इंतकाल किया है और ना मेरी फ़ीस वापस की है। मैंने आला काम से भी रब्ता किया, बार बार दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन ताल कोई सुनवाई नहीं हुई। ये पटवारी जो कि गुज़श्ता 12 साल से यहाँ धौंस धांधली से अपनी सिफारिश लड़ा कर तैनात है, इससे हमारी जान छुड़ाई जाए। जी। और फिरोजवाला काला शाह काकू एसए गार्डन बदर ब्लॉक में तामीर पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से कम आमदन वाले अफराद को छत फराहम करने के लिए स्मार्ट होम एंड विलास के संगे बुनियाद रखने की इफ्तिताही तकरीब हुई। CEO तामीर पाकिस्तान सुहेब महमूद ने टीम के हमरा संगे बुनियाद रखा। मजीद बताएंगे MA फरीद। फिरोजवाला काला शाह काकू ऐसे गार्डन में कम आमदन वाले अफराद के लिए स्मार्ट होम एंड विलास प्रोजेक्ट का आगाज। संगे बुनियाद की तकरीब के मौका पर CEO तामीर पाकिस्तान सुहेब महमूद ने कहा, कम आमदन वाले अफराद के लिए यह पाकिस्तान का पहला स्मार्ट प्रोजेक्ट है। तामीर पाकिस्तान ने नारा लगाया था 6-8 महीने पहले हमने अपनी एक्सपो में कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान पूरे में 500 से 700 घरों का नेटवर्क फैलाएंगे टू स्टार्ट विद, और उसके लिए पहली जो ईंट है वो हमने आज ऐसे गार्डन में रखी है। 50 से 55 घरों का ये प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह बदर ब्लॉक के अंदर, और अगले 3 साल के अंदर ये कंप्लीट होगा। इस मौके पर CEO ऐसे गार्डन शुएब अफजल ने कहा, स्मार्ट होम दौरे जदीद का शाहकार होंगे। ये उन सारे क्राइटेरियाज पे पूरी पहुंचती है और आई एम वेरी हैप्पी कि हम इस तरह की टीम के साथ काम कर रहे हैं जो हमारी तरह वक्त से पहले डिलीवर करने की बात कर रही है। तकरीब में संतू खान कवाल ने अपने सुरों का जादू जगाया। मशहूर कॉमेडियन नसीम विकी और शाहिद खान ने मेहमानों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी। पाकिस्तान उदो तरक्की करेगा जो सब तो पहले सी पाकिस्तानी होंगे, फिर बाकी जेडी शनाख्त है वो साडी है। इस मौके पर शहरियों और डीलर्स ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, ये मुनफरिद और मिसाली प्रोजेक्ट है जो वक्त की अहम जरूरत थी। मोबाइल की दुनिया में तहलका मचाने वाले मारूफ ब्रांड इन्फिनिक्स ने अपने नए फ्लैगशिप फोन नोट 12 के लिए मारूफ अदाकार फिरोज खान को बतौर ब्रांड एम्बेसडर ऐलान कर दिया। इन्फिनिक्स नोट 12 का मुनफरिद मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट में 26 मई से शानदार कीमत पर दस्तयाब होगा। इन्फिनिक्स और फिरोज खान के दरमियान मफाहमत याददाश्त पर दस्तखत हुए। तकरीब कराची के मुकामी होटल में मुनाकिद हुई। इस मौका पर इन्फिनिक्स पाकिस्तान के डायरेक्टर मार्केटिंग साद शम्स ने कहा कि अपने सार्फिन को मज़ीद बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने पर फ़ख्र है। नोट 12 जदीद टेक्नोलॉजी और फीचर्स पर तैयार किया गया है। इन्फिनिक्स नोट 12 का मुनफरिद मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट में 26 मई से बेहतरीन कीमत पर दस्तयाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी सयाह और एपो बाइकर्स क्लब मलेशिया के ताउन से मलेशियन बाइकर्स खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात को निकल पड़े। बाइकर्स किन किन मकामात का रुख करेंगे और कहाँ इनका पड़ाव होगा, इसी बारे में मजीद बताएंगे अब्दुल कायूम आफरीदी।
حسن کے دلدادہ افراد کو قدرت کے حسین نظاروں کی جنت خیبر پختونخوا کین چلائی. موٹر بائکس پر غیر ملکی سیاح خیبر پختونخوا کا قدرتی حسن دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے. President of the Ipoh Bikers Club. We come from Malaysia, Ipoh, Kuala Lumpur, Penang. So we come here to see your beautiful country. This is my first time, but my friends has come. 5 of my friends has come here before, and they say beautiful country. ریلی کے انعقاد کا مقصد ایڈونچر ٹورزم کے ساتھ ساتھ صوبے کے سیاحتی مقامات کو عالمی سطح پر فروغ دینا ہے. ریلی قراقرم، ہندوکش اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے سے ہوتے ہوئی کل 1950 کلومیٹر کا سفر طے کرے گی. ریلی خیبر پختونخوا میں سوات کے بعد چترال، وادی کیلاش، گرم چشمہ، کاکلشٹ میں اور شندور ٹاپ سے ہوتے ہوئی گلگت میں داخل ہوگی. عبدالقیوم آفریدی، نیو نیوز، پشاور.